डियर स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड कूलॉम्स लॉ एंड आल्सो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ. In this video we will discuss about electric field intensity due to a point charge and other charged particles. So first we will discuss about electric field intensity due to a point charge. As we know that intensity of electric field E is defined as the force per unit positive test charge, and also by Coulomb's law we have F equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. After putting the values in this equation, we will find that 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square and also 1 upon Q naught. यहाँ Q1 की वैल्यू Q समझ लेते हैं इसको जरा. अगर कोई एक सोर्स चार्ज यहाँ पर Q है और अनदर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पर Q नॉट हो, तो हमको ये कैलकुलेट करना है कि दिस पॉइंट चार्ज, ठीक, इस सोर्स के कारण इस पॉइंट चार्ज पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. तो यहाँ से Q1 की वैल्यू Q हो गई और Q2 की वैल्यू Q नॉट हो गई. तो इसको अगर Q कर दे और इसको Q नॉट कर दे तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड देन दिस विल बिकम्स 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. This is the equation for intensity of electric field due to a point charge. If we draw the graph between E and R square, from this equation it is clear that if here we take R square and here E, then this is clear that E is inversely proportional to R square. When value of R square increases, then E will be minimum, that means it will be infinity, then it will becomes 0, and when it will becomes 0 it will be infinite. Then R means near about 0, it will be infinity, and when R will be infinite, this will be 0. Then its graph will find in this form. As we know that E is the vector quantity, sure, then we can write it into vector form also. Vector E equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square and also vector R. This is the vector form of electric field intensity. क्लियर? ये सारी बातें हो गई. अब इसको देखेंगे लिखेंगे कैसे. ये तो समझने की बात हो गई. इसमें लिखेंगे हम लोग, let us consider that a positive test charge is placed in the electric field of a source charge Q. यहाँ Q नोट कर देते हैं Q. Then intensity of electric field due to this charge will be E equals to 1 upon F upon
Q naught and also equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q naught upon R square into 1 upon Q naught. Here Q naught will be cancelled here, so we will find that E equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. And also vector form of E will be vector E equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square R cap. क्लियर। इसके बाद बात करते हैं, क्लियर, इसको मिटा दें जरा। ग्राफ बिटवीन ए BW का मीन्स बिटवीन E एंड R स्क्वायर। तो जो फॉर्मूला हम लोगों के पास है E इक्वल्स टू 1 अपान, डायरेक्टली इस्तेमाल किए लिखते हैं हम लोग के Q अपान R स्क्वायर। इट इज क्लियर दैट T is inversely proportional to R square. From this equation we draw a graph between E and R square. Then we will find when R square will be maximum, E will be minimum, and R square will be minimum, then E will be maximum. So we will find a graph between E and R square in this way. Okay. ये तो बात हो गई और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसके बाद नेक्स्ट डिफिनेशन पर चलते हैं हम लोग। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसा कि इसके पहले हम लोग इसकी प्रीवियस क्लास में भी पढ़े हैं कि जो डेंसिटी होती है डी, ये होता है m अपान वी। नॉर्मल डेंसिटी की जब बात करते हैं तो होता है m अपान वी, बट यहाँ पर हम लोग चार्ज डेंसिटी पढ़ेंगे तो यहाँ पे चार्ज अपान होगा कुछ क्वांटिटी। बात है यहाँ पे लीनियर, क्या है लीनियर, एक है लीनियर, अनदर पढ़ेंगे हम लोग सरफेस, एंड थर्ड पढ़ेंगे हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसको समझते हैं कि कैसे डिफाइन करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी को। अगर इसके डिफिनीशन की बात करें हम लोग तो हो जाएगा when charge is distributed, when charge is distributed uniformly on a conductor, on a body over its length, then charge per unit length, charge per unit length is called linear charge density, linear charge density. It is represented by, it is represented by lambda. So by definition lambda equals to Q upon L, Q upon L, where Q is charge distributed, Q is total charge distributed, total charge distributed on the body, and L equals to length of
दैट बॉडी। ये तो बात हो गई लीनियर चार्ज डेंसिटी की। इसकी अगर यूनिट की बात करें, यूनिट, तो यूनिट ऑफ क्यू अपान यूनिट ऑफ एल, इसको यूनिट होती है आई इंटू टी की यूनिट होगी, और इसका मीटर होता है। तो यहाँ से आई का देखते हैं एम्पियर सेकेंड अपान मीटर, ये तो इसकी यूनिट हो गई। अगर डायमेंशनल फॉर्मूले की बात की जाए कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ से देखेंगे कि पहले इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, फिर एल का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। तो यहाँ से क्यू इक्वल टू होता है आई इंटू टी, इनके डायमेंशनल फार्मूले की बात की है तो ए इंटू टी अपान एल। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आएगा एल माइनस 1 ए टी, या ऐसे भी लिख सकते हैं एन टू दी पावर 0, क्योंकि एम की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। तो ये हो गया इसका डायमेंशनल फार्मूला। इतनी सारी चीज़ें लिखनी है लीनियर चार्ज डेंसिटी के डिफिनीशन में। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें हम लोग, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इस लीनियर को हम लोग यहाँ से हटा दें और इसको कर दें हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सेम डिफिनीशन, सेम सारे फॉर्मूले, बट यहाँ पर ओवर इट्स लेंथ है, ओवर इट्स सरफेस एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया, एंड यहाँ पर हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, बातें क्लियर है? जहाँ तक नोटेशन की बात है, इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास जो न्यू फॉर्मूला आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए, ये होगा सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपान एरिया। ये इतना सारा, यहाँ भी एल को नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ए। ये हो जाएगा हमारा सरफेस एरिया। क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया। यूनिट एंड डायमेंशन आप लोग इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जहाँ मीटर है यहाँ पर मीटर स्क्वायर कर देंगे, यहाँ ए लिख देंगे एरिया के लिए, ये मीटर स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा एल टू दी पावर माइनस 2, ये डायमेंशन हो जाएंगे। दो चीज़ें क्लियर हो गई। अगर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको भी रिमूव कर दें। नेक्स्ट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्लियर है? सेम डिफिनीशन, सेम फॉर्मूले, सारी चीज़ें, बट जहाँ पर हम लोग पहले लीनियर था, सरफेस में एरिया हो गया, वॉल्यूम में वॉल्यूम की बात करेंगे। तो यहाँ से इस टर्म को डिसअपियर करना होगा हमको, सरफेस एरिया को। यहाँ पर करेंगे हम लोग वॉल्यूम, यहाँ कर देंगे हम लोग वॉल्यूम। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसको कह देंगे वॉल्यूम डेंसिटी। क्लियर? वॉल्यूम डेंसिटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो, तो यहाँ हो जाएगा रो, एंड आल्सो इट विल चेंज इन फी। नोटेशन लिख देंगे आप लोग, और यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको हम यहाँ पर नहीं बताते हैं, ये आप लोग खुद ही करेंगे। ओके, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम लोग, अब पढ़ना होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये समझते हैं जरा। इलेक्ट्रिक लाइंस एक्चुअल में कुछ लाइनें नहीं होती हैं, ये केवल एक इमेजिनरी लाइन होती हैं, जो कि कॉर्ड होती हैं, स्मूथ होती हैं और कंटिन्यूअस होती हैं। ये 3 पॉइंट इसमें लर्न रखना है। क्या? इमेजिनरी, कंटिन्यूअस एंड स्मूथ आर कॉर्ड।
which represents electric field intensity. क्लियर? अगर इसको डिफिनीशन के फॉर्म में लिखना हो तो हम बस ऐसे लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ ए फोर्स इज, यहाँ से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी कंटिन्यूअस स्मूथ और कर्व्ड लाइंस which represents, ये represents लिखा है, थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं होती, which represents electric field intensity at any point. बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं कहें, या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहें, इसको भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर इसके डायरेक्शन की बात करें, अगर कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, ये सोर्स चार्ज हो, क्या हो, सोर्स चार्ज। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग कि सोर्स चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं सोर्स चार्ज। कोई ऐसा चार्ज जिसके इन्फ्लुएंस के बारे में हमको स्टडी करना है कि इसका इन्फ्लुएंस कितना है इसके फील्ड में। एक चार्ज हो गया, मान लीजिए Q है, तो इसका इन्फ्लुएंस क्या है A, और कोई अनदर चार्ज अगर हम ले लें, Q2 लें या Q0 लें, जो भी लिखें, इस चार्ज पर इसका कितना इफेक्ट है, कितना इन्फ्लुएंस है, तो हम जिस पर इफेक्ट और स्टडी करेंगे उसे कहेंगे टेस्ट चार्ज, और जिसका इफेक्ट स्टडी करेंगे उसे कहेंगे सोर्स चार्ज। तो दो चीज़ें याद रखना है कि जिस चार्ज का इन्फ्लुएंस हमको फाइंड आउट करना है, स्टडी करना है, वो हो जाएगा सोर्स चार्ज, और जिस चार्ज की कितना इफेक्टिव हुआ, मतलब इसका इफेक्ट अनदर चार्ज पर कितना पड़ा, मतलब उस पर पड़े इफेक्ट को हम कैलकुलेट करेंगे, तो वो होगा हमारा टेस्ट चार्ज। बातें समझ में आ गई? तो अगर कोई सोर्स चार्ज है, मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके फील्ड में कोई अनदर चार्ज हमने रखा प्लस चार्ज, क्या रखा है यहाँ पर Q0 मान लेते हैं, भी पॉजिटिव चार्ज है, तो जो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इन्फ्लुएंस इसका होगा, इस पर होगा। ठीक, हमको इस तरह स्टडी करना है कि इन्फ्लुएंस ऑफ Q ऑन Q0, तो इन्फ्लुएंस ऑफ ए सोर्स चार्ज हो गया, ये हो गया टेस्ट चार्ज। तो इनके बीच जो फोर्स एक्ट करेगा, ये रिपल्सन फोर्स एक्ट करेगा, मतलब जो फोर्स एक इधर होगा, सॉरी, इसका इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में होगा और इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। तो कहने का मीन्स यहाँ देखने से पता चला कि जो चार्ज है यहाँ से अवे, यहाँ से अवे, इधर क्या है, अवे है इधर, और ये डायरेक्शन क्या है, इधर अवे है। तो जब पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ से हो जाएगा अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन की बात करेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। देन फॉर पॉजिटिव चार्ज इट विल फ्रॉम अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज। बातें समझ में आ गई? बट अगर ये निगेटिव चार्ज होता, ये क्या होता, इसको भी प्लस रहने दे। मान लें कि अगर यहाँ पर निगेटिव चार्ज होता, हमारा जो सोर्स चार्ज है निगेटिव है, कोई पॉजिटिव चार्ज इसके फील्ड में हमने रखा जो कि टेस्ट चार्ज है, तो अब इनके बीच देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इनके बीच अट्रैक्शन होगा, क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो इस पर यहाँ से देखेंगे ये डायरेक्शन क्या है, जो इफेक्टेड चार्ज है उसका डायरेक्शन क्या देखते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं टूवर्ड्स दी निगेटिव चार्ज। यहाँ पर था कि इसका इफेक्ट इस पर इस डायरेक्शन में था, यहाँ देख रहे हैं हम लोग रिपल्सन हो रहा है, तो अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, एंड फॉर नेगेटिव चार्ज के लिए टूवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बट इफ दे फॉर्म ए सिस्टम, दैट मीन्स दे कंटेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बोथ,
फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज, अनदर इज नेगेटिव चार्ज। तो इनका जो डायरेक्शन होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम positive to negative. That means as we know that our electric field direction is from away from the positive charge and towards the negative charge. Hence electric field lines direction becomes our positive charge to negative charge. Clear? बट अगर कंडीशन ये हो कि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव हो और हमारा टेस्ट चार्ज निगेटिव हो, अभी तक तो हमने इसकी ओर पॉजिटिव लेकर के पढ़ा है, अगर ये निगेटिव हो तो जो इसका डायरेक्शन होगा ये होगा पॉजिटिव टू निगेटिव। क्लियर है? चलिए आगे देखते। तो फर्स्ट सबसे पहले लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करना है, तो देखेंगे कि जितना क्लोज रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही इफेक्टिव होगा, जितना अवे जाएंगे इसकी इंटेंसिटी उतनी डिक्रीज होगी। तो पहले साइंटिस्ट ने, फिजिसिस्टों ने क्या किया, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया कि यहाँ पर लार्जर है, यहाँ पर थोड़ी सी माइन्यूट है, इस तरह से ब्रेड लाइन से रिप्रेजेंट किया, यहाँ और माइन्यूट है, यहाँ और माइन्यूट, इस तरह के रिप्रेजेंटेशन किए। डायरेक्शन हो गया कि अवे भी है और डिक्रीज हो रहा है, जितना हम डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिक्रीज कर रही है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ किए गए, कुछ इस तरह से, यहाँ लार्जर, यहाँ इससे छोटा, यहाँ इससे स्मॉलर, यहाँ इससे स्मॉलर, यहाँ वेरी स्मॉलर, और डायरेक्शन इस तरह से दिखा दिए गए। सेम प्रोसेस नेगेटिव चार्ज के लिए भी किया गया। सेम प्रोसेस नेगेटिव चार्ज के लिए किया गया कि हाई इंटेंसिटी, लो, लेस, लेस। आल्सो इसका डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे हम लोग, इस तरह से कुछ। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इतने में तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहां देखने से पता चला डाइपोल, आप सबने पढ़ा होगा कभी ना कभी, डाई, डाई मीन्स टू, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ते हैं CO2। तो जब भी डाई मीन्स टू, पोल मीन्स साइड, पोल मीन्स साइड, दैट मीन्स एक ऐसा सिस्टम जिसमें टू साइड्स हो। क्या हो? टू साइड्स हो। सिंपल समझते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक की बात है। इफ टू चार्जेज are equal in magnitude, but they are opposite in nature and they are separated by a small distance, then this arrangement is called electric dipole। कहने का मतलब ये है कि अगर दो चार्जेज, एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, उनके मैग्नीट्यूड सेम हो और वे बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर अरेंज किए गए हों, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर प्लेस किए गए हों, तो इसे हम कहेंगे, इस अरेंजमेंट को इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, कैसे डिफिनीशन लिखेंगे? व्हेन टू अपोजिट एंड इक्वल charge in magnitude is placed very close, then this arrangement is known as डाइपोल। नॉर्मली डाइपोल कह सकते हैं या इलेक्ट्रिक डाइपोल कहें हम लोग। अगर डाइपोल भी कहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यही समझ में आनी चाहिए बात कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की ही, क्योंकि अनदर डाइपोल की बात हम लोग नहीं करेंगे। तो या तो नॉर्मली डाइपोल कहें या इलेक्ट्रिक डाइपोल कहें। तो इसके लिए नेसेसरी कंडीशन ये है
कि दो अपोजिट नेचर के चार्जेज होने चाहिए और इनके बीच का डिस्टेंस वेरी माइन्यूट होना चाहिए, वेरी स्मॉल होना चाहिए। एक डिफिनेशन और लास्ट इसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें दो अपोजिट नेचर के चार्ज बट मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, उनको हम वेरी क्लोज डिस्टेंस पर रखते हैं, तो उस अरेंजमेंट को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। बट इसके जब मोमेंट की बात करते हैं, देन द प्रोडक्ट ऑफ ऐसे समझते हैं कि इफ टू चार्जेज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर टू चार्जेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड but opposite in nature are separated by a small distance 2l, are separated by a small distance 2l, then the product of distance between them and a charge, that means q into 2l, q into 2l is called electric dipole moment and is represented by small p, small p। स्मॉल पी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो डिफिनीशन यहाँ से क्या हो जाएगा, पी इक्वल्स टू क्यू इनटू 2l, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर है बातें? दैट इज P इक्वल्स टू Q इंटू 2l। क्लियर? यहां से देखेंगे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। हमने वेक्टर का सिंबल भी लगाया है। डायरेक्शन की बात करें, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, its direction is from negative charge to पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से इसका जो डायरेक्शन यहाँ P है, इसका इस तरह से होगा। क्लियर है बातें? यूनिट की बात कर लेते हैं कि what will be unit of electric dipole moment, unit of Q coulombs, this is length मीटर, कूलॉम एंड मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात कर ले हम लोग, ये हो जाएगा Q AT और ये हो गया M मीटर, तो ये हो गया ATM लर्न रखेंगे हम लोग। यह डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, जहाँ समझ में नहीं आया होगा उसको आप लोग कमेंट करेंगे, हम फिर से उसको समझाने के लिए ट्राई करेंगे। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।